हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री जो है ऑन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट चैप्टर। यानी देखा जाए तो हम यहाँ कक्षा 11वीं का इतिहास करेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा और ये एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम हर एक बात पे, हर एक टॉपिक के महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर चीज़ का एनालाइज करेंगे। लेकिन आपको पता है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। According to the chapter here on the empire across the 3 continents, there is a most important question arrive here. Describe the main factor which were responsible for the decline of the Roman civilization. There is a most important question for the exam view here. Decline of the Roman civilizations here. The factor responsible for the decline of Roman civilization is important. The first of all here, wars and luxury life. Wars and luxury life. Repeated wars and conquest went and broke their back of democracy and luxury and is full way of the living democratized their ruling classes here. You know that the war and luxury life, the decline of the Roman civilization. And the next, slave revolt. There is a slave revolt is the most important here, decline of the Roman civilization here. The number of slaves out of a number, they are free men, and they grow rebellions as could not be quelled by the ruling class. This is the most important slave revolt here. The number of slaves out of number, they are free men, and the grey rebellions and could not be quelled. There is ruling class. There is a important and war and luxury life. The declaration of a Roman civilization. There is an important point here. The next here, weakness of empire. There is an important here, weakness of empire here. The Roman emperors began to the incompetent and the weak could not be face the invader. There is an important declaration. There is a point here. And spread of Christianity. There is a most important spread of the Christianity here. The Christian religions give us message for the love and equality. The Christian religions give a message for the love and equality. It's a beacon. The rule of the imperial sign is a create rebellious feeling among the slave. This is the most important declaration point here. The spirit of the Christianity here. The Christian religions give a message for the love and equality. And the next, the invaders as an invention. The invaders and raiders is shattered their Roman civilization. You know that is the most important point here. For the exam view, there is a declaration of the Roman civilizations here. हम जो करने जा रहे हैं आज बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमारा अगला जो क्वेश्चन आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रोमन सभ्यता का पतन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों का वर्णन करें। यानी रोमन साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारक मुख्य तौर पे जिम्मेवार थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन बनता है। देखिए, उत्तर रोमन साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से जो है उत्तरदायी कारक थे। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है
युद्ध और विलासितापूर्ण जीवन। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था, डिग्रेडेशन ऑफ जो रोमन सिविलाइजेशन, यानी बार बार युद्ध और विजय ने लोकतंत्र की कमर तोड़ दी और विलासितापूर्ण और आरामदायक जीवन शैली ने शासक वर्ग को हतोत्साहित कर दिया। यानी जर्नल सी बात है, जब भी ये बातें देखी जाएगी वो राज्य वो समय काल जो है विघटित हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है कोई भी सिविलाइजेशन के लिए जो है बहुत काफ़ी खतरनाक होता है। जैसे आज के समय में भी जो है रिप्रेजेंटर, बड़े बड़े मंत्री लोग सब जो है विलासिता और आरामदायक जीवन के शैलियों में जो है आम गरीबों को भूल जाते हैं और इस कारण जो है विनाश होना सुनिश्चित हो जाता है। उसके पश्चात गुलाम विद्रोह। कहते हैं गुलामों की संख्या स्वतंत्र लोगों के लिए अधिक थी। यानी देखा जाए तो गुलाम विद्रोह, गुलामों की संख्या स्वतंत्र लोगों के लिए अधिक थी और वो विरोधी हो गए और शासक वर्ग द्वारा उन्हें दबाया नहीं जा सका। जर्नल सी बात है दोस्तों, जब आप किसी और को गुलाम समझिएगा, जैसे आज के लोग जो हैं सिर्फ आम जनता का उपयोग करते हैं इलेक्शन में, तो जो गलत है। कहते हैं अगर ऐसे विश्वास रखिएगा तो ना तो आपकी पार्टी बचेगी, ना तो आपका जो है शासन बचेगा, क्योंकि कहते हैं जब आम गरीब व्यक्ति समझदार हो जाते हैं तो अंग्रेज जैसे जो है देश से भागना पड़ता है। तो आप जो कुछ मंत्री हो जो कि लोगों के द्वारा ही चुने जाते हो, तो आपका क्या हाल हो सकता है आप स्वयं ही नहीं जानते। इसलिए हमेशा यही बात त्रिपान स्टडी सेंटर कहता है कि जितना हो सके आप अच्छे कार्य में ही और लोगों के भलाई में ही अपना जीवन व्यतीत करें, और कहते हैं विलासितापूर्ण जीवन और आरामदायक जीवन शैली को न अपनाएं। कहते हैं आराम करना अच्छी बात है, बट इतना नहीं है कि आम गरीबों के पैसों का जो है आप गलत उपयोग करें, गलत चीज़ों का जो है अनुसरण करें, क्योंकि इससे आम गरीबों को तकलीफ़ होती है और आपके लिए जो है गलत भावना यहाँ पर पैदा होती है। अगली बात करें सम्राटों की कमजोरियाँ, तो कहते हैं वही बात आ गई कि रोमन साम्राज्य अयोग्य एवं कमज़ोर होने के कारण जो है आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सकी। जर्नल सी बात है, जब सम्राट कमज़ोर होगा, अयोग्य होगा, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करेगा, तो वो साम्राज्य के जो है नष्ट होना स्वाभाविक हो जाता है। और ऐसा ही हमें जो है रोमन साम्राज्य में भी देखने को मिला कि यहाँ का सम्राट जो था कमज़ोर था और बाहरी आक्रमण से जो है देश की रक्षा नहीं कर सका। उसके पश्चात था यहाँ पर देखा जाए तो ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म ने प्रेम और जो है असमानता का संदेश दिया। ईसाई धर्म का विचारधारा यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण था कि इन्होंने जो है ईसाई धर्म ने प्रेम समानता का संदेश दिया और इसे सम्राटों के शासन को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि इनसे दासों में विद्रोह भावना पैदा कर दी। यानी देखा जाए तो अगर यहाँ पर अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो ईसाई धर्म का प्रचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसमें दासों में विद्रोह की भावना पैदा की और इनको बता दिया कि भाई हम जो है प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले हैं, हम जो है गुलाम नहीं रहने वाले हैं। तो ईसाई धर्म का प्रचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित हुआ। छापे और आक्रमण। कहते हैं आक्रमणकारी और हमलावरों ने रोमन साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। तो कहते हैं देखिए कोई भी अगर एम्पायर का अगर विनाश हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है साम्राज्य को यानी जो राजा का जो है कमज़ोर होना ही है, और बाहरी आक्रमण तो इसमें मेन रहती है। तो ये सारी का भी बात महत्वपूर्ण है। कहते हैं एक ही बात महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी अगर बड़े पद पे जाता है तो उसको जो है कहते हैं एक निर्ममता पूर्वक जो है अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और आम गरीबों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है और ज़रूरी है, तभी जो जाके जो है इसका विकास हो सकता है और कोई भी साम्राज्य जो है आगे स्टेबलेट हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था हर एक समय काल के लिए और ज़रूरी भी था। इसमें हमने सारी पॉइंट की तरफ जो इशारा किया, युद्ध और विलासितापूर्ण जीवन, गुलाम विद्रोह, सम्राटों के कमज़ोर होना, ईसाई धर्म का प्रचार और छापे और आक्रमण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। कहते हैं रोमन एम्पायर इतनी मजबूत थी, इतनी स्टेबलेट था, लेकिन फिर भी इसका जो है विघटन हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बात की तरफ इशारा करता है और जो आज के राजनीतिक नेता हैं इन सब चीज़ों से शिक्षा लेना चाहिए। किसी का जो है बने रहना वहाँ की जनता पर निर्भर करता है और जनता के लिए ही शासन बनती है, जनता के द्वारा ही बनाई जाती है। तो जनता के लिए ही कार्य करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, नहीं तो जनरल सी बात उसका पतन हो जाना स्वाभाविक होता है और आज के आधुनिक युग में ये हमें देखने को साफ मिलता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। जो क्वेश्चन आंसर की जो लड़ी थी वो ख़त्म हो जाता है। हमने इतने ही क्वेश्चन करने थे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से तैयारी करते हो, हर पॉइंट को नोट करके अपने कॉपी में याद करते हो या देखते हो,
तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अंक प्राप्त कर पाओगे। ये त्रिपाण सेंटर का विश्वास है। अगर आप भी त्रिपाण सेंटर का विश्वास बनाए रखना चाहते हो, अगर आगे और भी वीडियो देखना चाहते हो, तो जनरल सी बात है, आपके अंदर जो शेयर करने की भावना है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हो तभी दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सकता है। मेरी जहां तक पहुंच है मैंने पहुंचाने की कोशिश करता ही सदैव रहता हूं। ठीक है, इसे सोचिए नहीं। चैनल को जो है जितना हो सके शेयर कीजिए, दूसरे बच्चे तक पहुंचाइए, वीडियो को पहुंचाइए। ये आपका काम है, मेरा काम है आपके लिए जो है फ़ायदेमंद त्रिपाण सेंटर को बनाना। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जनरल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बारे में सेव कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। यहाँ पर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है और आपके लिए तो है ही है बहुत कुछ। सिर्फ समय के इंतज़ार कीजिए, आपको सब कुछ यहाँ पर प्राप्त होगा। सिर्फ आपका जो है विचार हमेशा त्रिपाण सेंटर के साथ मिलना चाहिए, रहना चाहिए। तो सोचना नहीं दोस्तों, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करने के विचार रखना है।